once again we welcome you to the Divine Connection. एक बार फिर अलौकिक संपर्क यानी डिवाइन कनेक्शन में आपका स्वागत You है। know, the thesis of our program is that when mankind is connected with God, the divine person who created us, his life changes for the better. हमारा इस प्रोग्राम के पीछे का मकसद यही है कि मनुष्य जब परमेश्वर के साथ में जुड़ जाता है तो उसकी जिंदगी बेहतर होती चली जाती है। प्रभु उसमें काम करके उसे बेहतर इंसान बनाते हैं। So you will keep on listening to this or hearing this word from us that you need to be connected with God. It is only that connection helps you to be different, change for the better, and live a peaceful and fruitful life in this world. इसीलिए आप बार बार हमारी ओर से सुनते रहेंगे कि परमेश्वर के साथ में जुड़ जाइए। जब उसके साथ में आप जुड़ जाएंगे तो आपका जीवन बेहतर होगा, आप अच्छी तरह से जिएंगे, शांतिपूर्ण रूप में अपना जीवन जी Above सकेंगे। all, we will help you to get connected with God who can clear all your confusion. और सारी बातों से बढ़कर हम आपकी मदद करेंगे कि आप परमेश्वर के साथ में संपर्क में जुड़े, जिसके कारण आपके सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। Who will be able to reveal His will through the Bible, which we are using in this program and which we are always mentioning and revealing very, very clearly that this Bible is the Word of God and it is God's written will for mankind. और परमेश्वर का वचन जो कि बाइबल है, इस प्रोग्राम में हम हमेशा बताते हैं कि ये परमेश्वर का लिखा हुआ पवित्र वचन है और मानव जाति के लिए ये परमेश्वर की लिखित ऐसी इच्छा है। ये परमेश्वर का वचन है। So sometimes you may be confused, don't worry. कई बार अगर आप किसी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप चिंता मत There कीजिए। are enough confusions around us. हमारे आसपास पहले से बहुत से कंफ्यूजन्स हैं And some of those confusions may be true. और उनमें से शायद कुछ कंफ्यूजन तो बिल्कुल सही And होंगे। they are saying it is happening in this country and that country, and you may be wondering, oh, what are we going to do again if it is going to come? वो कहते हैं इस देश में उस देश में ऐसा हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि अगर ये फिर से हो जाए तो हम क्या करेंगे। But we have to be thankful to God because the COVID count is reducing in our country. हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है क्योंकि हमारे देश में कोविड की जो संख्या है वो तो घटती जा रही है। प्रभु का I fully धन्यवाद। believe God is merciful on our nation. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हमारे देश पर दया की है। A lot of people, God's people, have been pleading with Him, praying for this thing. परमेश्वर के लोग, बहुत से लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। So God heard all their prayers and now the vaccine has started and slowly I think we will get over with it completely. और परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी और इन दिनों में वैक्सीन भी आ गए हैं और हम इस पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेंगे। You know, India is celebrating its Republic Day this week. इस हफ्ते भारत अपने गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है। And what are we celebrating about? और हम ये किसके बारे में उत्सव मना रहे हैं? We are celebrating the Indian Constitution coming into effect on this day. हम इस बात का उत्सव मना रहे हैं कि भारतीय संविधान इस दिन से प्रभावशाली हुआ था। It is like we have made how we should live, the Constitution, the laws, the bylaws, and that gives us freedom so that we can follow any religion, we can have the right to speak, we can express our views. Those are the freedoms that are given to us in the Constitution. यानी हमने अपने नियम बनाए हैं, अपनी व्यवस्था बनाई है, कानून बनाए हैं कि हम किस तरह से जिएंगे। हम अपने विश्वास को, अपने दृष्टिकोण को बता सकते हैं। इस तरह की आज़ादी हमें संविधान देता है। हम अपनी बातों को निश्चय ही बता सकते हैं। We are not ruled by a monarch. हमारे ऊपर कोई राजा राज्य नहीं करता है। We are not subjects of a king who is ruling us. हम ऐसे राजा की प्रजा नहीं हैं जो हम पर राज्य We करता have हो। the right to choose. हमारे पास अपने मर्जी से चुनाव करने का अधिकार है। We have the right to speak. हमारे पास बोलने की स्वतंत्रता We है। have the right to follow any religion we want. हम अपनी मर्जी से अपनी आस्था के अनुसार चल सकते हैं। We have right to express our views. हमारे पास में अधिकार है कि हम अपने दृष्टिकोणों को बताते जाएं। So definitely it is a day of celebration where we remember when we received this constitution in place. So it takes into effect and it is controlling us today. निश्चय ही संविधान जब से स्थापित किया गया है, उस दिन का उत्सव हम मनाते हैं
और इस तरह से गणतंत्र दिन मनाया जाता In है। New Delhi, the Republic Day parade display the magnanimity of our nation and our army. नई दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड जो होती है ये तो हमारे देश की महिमा और हमारे फौज की महिमा को प्रकट करती And the है। police parade and also the glory of each state is displayed in the procession. उस समय पुलिस परेड में होती हैं और हर एक राज्य की अलग अलग विशेषताएं वहां पर दिखाई जाती हैं। इसका वो उत्सव मनाते हैं। When you're thinking about this, not just India, any nation for that matter, when they received freedom, when they received independence, when they have what we call the governance for their own or of their own, they are very, very happy. And it is a general feeling that we would like to rule ourselves. देखिए, केवल भारत देश की ही बात नहीं, लेकिन दुनिया के कोई भी देश की बात आप लीजिए, जब उनके पास में अधिकार होता है, जब वो स्वतंत्रता पाते हैं, निश्चय ही वो अपने दिल में इन सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और ये इस तरह से है कि हम अभी खुद पर अधिकार कर सकते हैं। Human beings long to be of their own. देखिए, मनुष्य अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप में जीना चाहते And हैं, this gives fulfillment. और ये तो उन्हें परिपूर्णता देता This है। gives joy and peace. ये शांति और आनंद देता It है। gives a feeling of accomplishment in life. ये जीवन में कुछ हासिल किया ऐसा महसूस Because करवाता when है। you think about, God who created us, He created us with different kinds of emotions. देखिए, परमेश्वर ने जब हमें बनाया तो उसने हमें अलग अलग भावनाओं के साथ Not नहीं just बनाया। mankind, even animals have this instinct in them that they would like to be free. मनुष्य ही नहीं, यहाँ तक कि जानवर में भी ये विचारधारा है कि वो तो आजाद रहना चाहते They हैं। want to live independently. वो भी स्वतंत्र रूप में जीना चाहते They हैं। do not want to be controlled. वो नहीं चाहते कि कोई उन पर नियंत्रण करे। Therefore, there is nothing wrong in us feeling that we need to be free. और इसलिए इस बात में कोई गलत नहीं है कि हम महसूस करते हैं कि हमें स्वतंत्र And होना as India चाहिए। celebrates its Republic Day, we are grateful to God for all the things that He has allowed so far and the freedom we are enjoying today. And I hope and pray that this freedom will continue to be implemented in the nation all over so that all God's people can experience His power. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस गणतंत्र दिवस के लिए कि और आज हम स्वतंत्रता का आनंद उठा पा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि इस पूरे देश में गणतंत्र दिवस इसी तरह से बड़े उत्सव से मनाया जाए ताकि हम सब परमेश्वर की सामर्थ का अपने जीवन में Now, I want to अनुभव talk करें। a little bit today about the freedom that we are enjoying. मैं जिस आज़ादी का हम अनुभव कर रहे हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। How do we have this instinct, that feeling of wanting to be free? हम में ये प्रेरणा कैसी है कि हम तो आज़ाद रहना चाहते हैं। And I believe, first of all, that we have, this freedom or, the instinct to be free because we are made in God's image. मैं विश्वास करता हूं कि हमारे अंदर में स्वतंत्र रहने की प्रेरणा इसलिए कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बने हुए How do हैं। I have the ability to choose different things in life? मेरे जीवन में कौन सी चीजों का चुनाव मुझे करना चाहिए, इसकी योग्यता And कैसी I है? believe it comes from God. मैं विश्वास करता हूँ ये परमेश्वर से Because आती it is है, He who made us. क्योंकि उसी ने हमें बनाया And है। when He made us, He says, let us make man in our own image and in our own likeness. Genesis 1:26 and 27. उत्पत्ति अध्याय 1:26 कहता है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता के अनुसार And बनाया in the है। 27th verse, again it is reiterated, He made man in His own image and in His own likeness, So, that is how God created us. वचन 27 में फिर से ये बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में और अपनी समानता के अनुसार बनाया। इस तरह उसने So, हमें I बनाया। believe the nature of God that is within us is helping us to operate the way we operate. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का जो स्वभाव हमारे भीतर है, इसी के कारण हम इस तरह से
काम करते चले जा रहे हैं। To operate freely how God is operating. जैसे परमेश्वर आजादी में काम करते हैं, हम भी वैसे ही करना चाहते You हैं। know, God shared some of His qualities, some of His attributes with us. परमेश्वर ने अपनी कुछ विशेषताएं, अपने स्वभाव गुण हमारे साथ That's why बांटे when He हैं। says, you know, He created man in His own image, He means some of the qualities of God are shared by all of us, mankind, human beings. जब ये कहता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार हमें बनाया, मतलब उसने अपने स्वभाव गुणों को हमारे अंदर में रखा है। सभी मानव में उसके स्वभाव गुण पाए जाते And हैं। God created, and we also create some things. परमेश्वर ने सृष्टि की और हम भी कुछ निर्माण करते हैं। God loves, we also love. परमेश्वर प्रेम करते हैं, वैसे हम भी प्रेम करते हैं। God exercises His power, we also exercise our power. परमेश्वर अपनी सामर्थ का काम करते हैं, हम भी अपनी सामर्थ में काम करते हैं। God has knowledge, we also have knowledge. परमेश्वर के पास ज्ञान है, हमारे पास भी ज्ञान But है। there is a qualitative difference in all this. लेकिन इन सभी बातों में बड़ी उत्तमता का फर्क है। And God's knowledge, God's power, God's love, it is incomparable with what we have. और इसलिए परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का प्रेम तो हमारे सभी से बिल्कुल अलग हैं, बहुत महान हैं। But I want you to realize that when God gave us this free will, the ability to choose, we are given the freedom to even go against His will sometimes. जब परमेश्वर ने हमें चुनाव करने के लिए स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है, तो कई बार हम उसके कारण परमेश्वर के विरुद्ध में ही चले जाते हैं। इस स्वतंत्रता में आकर हम उसका विरोध कर बैठते हैं। That's how He created us. इसी तरह से उसने हमें बनाया है। He wants us to enjoy that freedom. वो चाहते हैं कि हम इस स्वतंत्रता का आनंद He उठाएं। wants you to exercise your will to take decisions for your life. वो ये चाहते हैं कि आप अपनी इच्छा में होकर काम करें और अपने जीवन के लिए निर्णय लेते It चले is जाएं। true, He has said how we should live, what we have to do, and it is all written in this Bible. And we are using, you know, in this program, everything, whatever we are saying is from this book. ये बात तो सच है कि परमेश्वर ने हमें बता दिया है कि हमें कैसे जीना है। ये सब कुछ लिखकर बाइबल में हमें दे दिया है। इस प्रोग्राम में हम इसी में से आपको बताते चले जाते हैं। But He has given you the freedom to choose either to obey it or to disobey. लेकिन उसने आपको पूरी स्वतंत्रता दी है कि आप चुनाव करें कि क्या आप इसकी आज्ञा मानेंगे या इसकी आज्ञा को भंग करेंगे। In the very first book, as we read about Adam and Eve, He says, do not eat from the tree of good and evil, the fruit from the tree of good and evil. और बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इस तरह से कहा था कि तुम इस पेड़ का फल नहीं खाना, भले बुरे के ज्ञान के पेड़ It का is a फल नहीं choice खाना। God gave to them. यानी परमेश्वर ने उन्हें अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार ये चुनाव The दिया था decision has to be made by Adam and Eve. और ये निर्णय तो आदम और हव्वा को लेना था। So God gave them freedom, and still we are enjoying that freedom today to choose God or to reject God. परमेश्वर ने उन्हें स्वतंत्रता दी और आज भी हम उसका आनंद उठाते हैं कि चाहे परमेश्वर का चुनाव करें या उसका चुनाव But He न करें। wants us to choose Him with our own will and volition. वो चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से परमेश्वर का चुनाव करें, परमेश्वर को हम अपने जीवन के लिए चुन ले। So that's why I want to say, secondly, first of all, I said this freedom is shared with us because we are created in God's image. देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि यह आज़ादी हमें दी गई है क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। Secondly, I want to say that God wants you to exercise your freedom in what you believe. दूसरी बात, परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाएं, आप क्या विश्वास करते हैं उसमें। My dear friends, my dear brothers and sisters, if you're listening me, listen very, very carefully. This choice to believe in Jesus Christ, to accept Jesus Christ, or to follow this faith is purely your decision, your choice. मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि निश्चय ही यीशु मसीह के पीछे चलने का जो आपका निर्णय है, ये केवल आपका चुनाव है। आपने खुद अपनी मर्जी से लिया हुआ निर्णय है। Nobody can force it. कोई भी इसकी जबरदस्ती नहीं कर सकता है। You cannot force faith on people. आप लोगों के ऊपर विश्वास थोप नहीं सकते हैं।
if they accept a faith because of a situation or because of the circumstances they are in, you know, and if they are forced and they accept the faith, actually in the eyes of God they did not actually believe और him. देखा जाए तो केवल किसी परिस्थिति के कारण अगर वो किसी विश्वास को स्वीकार करते हैं और अगर वो इस तरह से उनके ऊपर जबरदस्ती की जाए इसलिए विश्वास को स्वीकार करते हैं तो ये परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं। You know, why am I saying all this? मैं ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ? Simply because there are a lot of people who think, you know, the religion is forced upon people, but I'm saying no, it is not forcing upon people, it is a choice given to them, and if they believe, if they choose, if they decide, they can come and they can choose to reject anytime they want. मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चय ही लोग चुनाव करते हैं, लोग अगर पसंद करते हैं तो वो उसे स्वीकार कर सकते हैं और वो किसी भी समय चुनाव कर सकते हैं कि वो आए या न आए, ये उनका खुद का निर्णय होता है, ये किसी तरह से कोई जबरदस्ती नहीं होती है। In the Gospel of Mark, when Jesus was living in this world, in the 8th chapter, 34th verse, we read like this, then he called the crowd to him along with his disciples and said, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me. मरकुस अध्याय 8 वचन 34 में यीशु ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इस तरह से यीशु ने कहा, Anyone who would come after me, यानी कोई भी जो मेरे पीछे आना चाहे। that desire, anyone who would want, that's important to note. यहाँ पर ये इच्छा कि जो भी उसके पीछे आना चाहे। Jesus also never forced people to follow him. यीशु ने कभी किसी से जबरदस्ती नहीं की कि वो उसके पीछे आए, उसके पीछे चलने He लगे। wanted people to take their own decisions. वो तो चाहते थे कि लोग अपना निर्णय खुद निर्णय In the लेके book of जाएं। Revelation chapter 3 verse 20, there's an interesting statement. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. प्रकाशित वाक्य 3:20 में बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। ये कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। He's knocking the door. यानी वो दरवाजा खटखटा रहे हैं, It is you who have to open. लेकिन आपको वो द्वार खोलना है। I have to open. मुझे वो द्वार खोलना है। If I don't open, he doesn't enter. अगर मैं द्वार न खोलूं तो वो भीतर नहीं आ सकते हैं। He is a gentle God. वो तो बहुत ही नम्र परमेश्वर हैं। And he doesn't intrude in the lives of people. वो लोगों के जीवन में ऐसे घुसपैठ नहीं करते हैं। He is a great and mighty God. वो तो महान और सामर्थी परमेश्वर And हैं। his faith that we are following, we are presenting to you is something that you can decide upon and you can choose for yourself with the freedom God has endowed you with. और उसी के विश्वास के बारे में हम आपको बता रहे हैं। आप खुद इसे देखिए, आप खुद इसके बारे में विचार कीजिए। परमेश्वर ने आपको ये मौका And दिया it है। applies even to Christians. ये तो मसीही लोगों के लिए भी उपयोगी It है। applies to any group of people. ये किसी भी समूह के लोगों के लिए उपयोगी हैं। You know, I used to always wonder when I read the book of Joshua in the Old Testament. जानते हैं, जब मैंने पुराने नियम में यहोशू की किताब पढ़ी तो मैं ये सोचता You know, था, after Joshua was given a great task to take victory over Canaan and then divide the land for the people of Israel. यहोशू पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि वो पूरे कनान देश को जीत ले और उसके बाद में इस्राएली गोत्रों के अनुसार And उसे after बांट दे। dividing, in his final closing words, he makes a mention of very, very important statements. और जब वो उन्हें बांट देता है तो उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण Joshua वाक्य कहता है। 24, 14 and 15. यहोशू अध्याय 24 वचन 14 और 15 में He says, Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Throw away the gods your forefathers worshipped beyond the river and in Egypt and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord.
इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। What an amazing statements these are. देखिए ये कितने अद्भुत ऐसे वाक्य हैं। Joshua is giving this choice even to the chosen people of God. You can choose to serve him. You can choose not to serve him. That is in your hands. यहोशू यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों के सामने ये चुनाव रखता है कि तुम उसके पीछे चलने का चुनाव कर सकते हो, या फिर तुम चुन सकते हो कि तुम उसकी सेवा न करो, उसके पीछे न चलो। ये चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा And God है। wants you to exercise this freedom in what you believe. आप जो विश्वास करते हैं उसमें परमेश्वर चाहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता का आप उपयोग करते चले जाएं। No forcing, no compulsion. कोई जबरदस्ती नहीं, कोई बेबसी नहीं है। And it is God who is working in you to help you to decide. और ये परमेश्वर है जो आप में काम करते हैं ताकि निर्णय लेने में आपकी मदद कर And that सके। leads me to the final idea I want to present before you today. और अभी मैं आपको ये अंतिम विचार बताना The चाहता हूँ। Spirit of God enables the hearts of people to act freely to choose what is right. परमेश्वर की आत्मा लोगों के हृदय को प्रोत्साहित करती है कि आजादी से वो चुने कि उन्हें क्या चाहिए। The Spirit of God is working. परमेश्वर का आत्मा काम करता Or है। you may be wondering, who is the Spirit of God? शायद आप सोच रहे होंगे परमेश्वर का ये आत्मा कौन You है। know, the Bible talks about him all through, from the book of Genesis till Revelation. देखिए बाइबल उसके बारे में पूरी तरह से बताती है, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक उसके In बारे the में book of लिखा है। Genesis, it says, in the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was formless and empty. The Spirit of God was hovering over the waters. उत्पत्ति अध्याय 1:1 कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी तो बेडौल थी और परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा रहा था। और इस तरह से वचन हमें बताता But I है। want to tell you that this Spirit enables us to act freely, and where He is present, there is freedom. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यही आत्मा चाहता है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्रता में होकर काम करें, और वो पूरी आज़ादी में चलने में हमारी मदद करते चले जाता है, वो हमारी अगुवाई करता है। In the book of 2 Corinthians chapter 3 verse 17 we read, Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 3:17 कहता है कि प्रभु आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा जहां पर है वहां पर He is स्वतंत्रता talking है। about a freedom, how God delivered us from the Old Testament laws and regulations, that in Jesus Christ we are enjoying this freedom because of the Spirit of God. वो यहाँ पर हमें बताता है कि कैसे परमेश्वर की आत्मा ने हमें पुराने नियम के उन सारे बंधनों से आजाद किया है, और अब हम कैसे स्वतंत्र हो चुके हैं। But I want to tell you, the work of the Spirit doesn't end in just relieving us from the OT commandments and laws. The work of the Spirit operates, or it helps in our lives to decide how to live today. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के आत्मा का काम वहीं पर खत्म नहीं होता कि हमें पुराने नियम की इन सारी विधियों से छुड़ाए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है कि आज हमें किस तरह से जीवन जीना है। In the book of Galatians chapter 5 verses 16 and 17 he says, So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. गलातियों अध्याय 5:15 और 16 में इस तरह से कहता है कि आत्मा के अनुसार जियो ताकि तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरी न कर सको। Can you understand what I'm trying to say? मैं क्या कह रहा हूं कि आप इसे समझ रहे The हैं। Spirit is working, आत्मा काम कर रहा है, so we will not yield to the desires of flesh. इसलिए कि हम शरीर की अभिलाषाओं को समर्पण न करें। इसलिए आत्मा अगुवाई There is करता a है। struggle going on in our lives हमारे जीवन में ये कश्मकश तो लगी हुई है to obey God or to obey the flesh, कि शरीर की आज्ञा माने या to obey परमेश्वर की God बात or to माने, obey Satan. कि ये परमेश्वर की बात माने या शैतान की बात This माने। attraction is there always to go along with the world. यह आकर्षण तो हमेशा होता है कि हम संसार के अनुसार ही काम करते चले The जाएं। sinful desires are contrary to the ways of the Spirit. पापमय इच्छाएं तो आत्मा के कामों के विरुद्ध में हमेशा होती हैं। Therefore, in this conflict, I am saying the Spirit of God helps us to exercise the freedom God has given to us. और इसी संदर्भ में मैं कहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने हमें यह आजादी दी है
कि हम परमेश्वर की आजादी में काम If you करें। have time, please read in your free time, when you have time, read Galatians 5 verses 16 onwards till the end. निश्चय जब आपके पास में खाली समय होगा तो आप गलातियों अध्याय 5 वचन 15 से अंत तक इसे जरूर And पढ़िए। it talks about the acts of the sinful nature. What are the acts of the sinful nature? But the Spirit of God helps you to decide what is good. ये पाप में कामों के बारे में बताता है और साथ में ये भी बताता है परमेश्वर आपकी मदद करते हैं कि आप निर्णय लें कि क्या सही है और क्या गलत है। इसके लिए परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करता है। And the same Spirit of God is telling us that we need to obey our government. और परमेश्वर का वही आत्मा हमें बताता है कि हमें अपनी सरकार की आज्ञाओं को मानते चले जाना है। I want to assure you, I want to tell you very, very clearly and honestly, this Bible teaches us only what is good. मैं आपको शाश्वती देना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि ये बाइबल केवल हमें अच्छी बातें ही सिखाती है, सही काम सिखाती है, Nothing evil. कुछ भी बुराई नहीं सिखाती है। No sinful things are recommended here. यहाँ पाप के काम करने की कोई सिफारिश नहीं की गई है, सलाह नहीं दी गई है। Even in the exercise of your freedom, this Bible and the Holy Spirit that's living in us is always guiding us to do the right thing, to make the right choice. यहाँ तक कि जब हम अपनी आजादी में होकर काम करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है केवल इसलिए कि हम सही चुनाव करते जाएं और सही काम करते जाएं। So when you read in 1 Peter chapter 2 verses 13 to 19, please read it, in your leisure time. When you have time, go over this again and again. It is recommended that we obey our government. It is recommended that we obey our masters. It is recommended that we obey our leaders. यहाँ तक कि पहला पत्रस अध्याय 3 में अगर आप ध्यान से पढ़े तो ये कहता है कि अपनी सरकार की बात को मानो, हमारे ऊपर जो स्वामी है उनकी बातों को माने और उनके विरुद्ध में न जाएं। इस तरह से हमें सलाह What a दी गई। great God this Bible is recommending for us. बाइबल इन्हीं सारी बातों की सलाह हमें देती है। This Bible shows us the true and the living God, ये बाइबल हमें सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में बताती है so we can have peaceful lives. ताकि हम शांतिपूर्ण जीवन जी सकें, We'll be able to bless others, ताकि हम दूसरों को आशीष दे सकें। and we are called to exercise our freedom. और हमें बुलाया गया है कि हम अपनी आजादी में होकर काम करें। Are you worried about that? क्या आप इसके बारे में चिंतित हैं? Are you confused? क्या आप गड़बड़ी में पड़े हुए हैं? Don't worry. तो चिंता मत It कीजिए। is time you come to God. ये समय है कि आप परमेश्वर के पास आएं। In faith, it is time that you come to the Lord Jesus Christ who came into this world and died for you on the cross of Calvary. विश्वास से आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, जिसने इस जगत से प्रेम रखा और कलवरी के क्रूस पर वो आपके लिए मर गए। He died and was buried and rose again on the third day. वो मर गए, गाड़े गए और फिर तीसरे दिन फिर से वो जी उठे। तीसरे दिन मृत्यु पर जयवंत होकर जी And he's उठे। going to come again. और वो फिर से वापस आएंगे। That is the faith we are proclaiming to हम you. इसी विश्वास की घोषणा करते हैं And that is the faith this Bible recommends. और उसी विश्वास के बारे में ये बाइबल हमें बताती है। If you believe Him and accept Him as Lord and Savior, then the Spirit of God will control you and He will continue to help you to live better. अगर आप उस पर विश्वास करते हैं, उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आप पर नियंत्रण करेगा और वही आपकी अगुवाई करता चला जाएगा, मार्गदर्शन करेगा। Need help with this? Please contact us in the phone numbers and the email addresses that are given. अगर इसके बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमसे इस पते पर या इस फोन नंबर पर संपर्क कीजिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। May God bless you and your family today. परमेश्वर आज आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। Amen. आमीन। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number